औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ENG 508 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड लेसन वाइज MCQs, जो कि आपके ENG 508 के ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करने के बाद आपकी ENG 508 के ऑब्जेक्टिव पार्ट की तैयारी 99% तक डन हो जाएगी। एज़ यू नो, ENG 508 का जो पेपर है वो हैंड आउट्स के अंदर से MCQs आ रहे होते हैं, तो स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं और इसमें अच्छा CGPA गेट करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये लेसन वाइज MCQs की एक फ़ाइल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट किया। आपने वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है और इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। अगर चैनल पे न्यू है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास। MCQs number 1 है semantic is a part of linguistic that is concerned with the study of literal meaning, decontextualized meaning, grammatical meaning, all of them. Option D is correct, all of the given option. Describe how language organize and express meaning. Linguistic semantic, semantic pragmatic, most important and most repeated MCQs है. Option A is correct, linguistic semantic. The language uses a system of linguistic signs, each of which is combination of, यानी लैंग्वेज के अंदर जो साइंस यूज़ हो रहे होते हैं तो वो साइंस किस चीज़ के कॉम्बिनेशन होते हैं, मीनिंग के, फोनोलॉजिकल फॉर्म के, ऑर्थोग्राफिक फॉर्म के। तो इन सारी जो ऑप्शन है ये करेक्ट हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दैम। इन द सेमेंटिक एनालिसिस देयर इज ऑलवेज एन अटेम्प्ट टू फोकस ऑन व्हाट द वर्ड्स मीन्स pragmatically, semantically, conventionally, literally, conventionally. Option C is correct. Pragmatic is the study of meaning as communicated by speaker and interpreted by listener, communicated by listener and interpreted by speaker, communicated by the native speaker. Option A is correct, communicated by the speaker and interpreted by the listener. According to whom pragmatic is the study of invisible meaning. ये किसकी स्टेटमेंट है? चौंक्सी, योल, स्किनर. ऑप्शन बी इज करेक्ट, योल. pragmatic may vary from speaker to speaker, language to language, culture to culture. Option C is correct, culture to culture. The relation between linguistic form and communicative function dashed interest in pragmatic. Most important MCQs as central interest in pragmatic. Option A is correct. Both semantic and pragmatic involved dash studying, meaning, context, lexical relation, meanings. Lexical semantic deals with the words meaning, words context, words meanings. According to Chapman, semantic is concerned with sentence and pragmatics concerned with utterance, phrase, paragraph. Option A is correct, utterance. The most obvious distinction between sentence and utterance is utterance will have spatiotemporal, physical and physical properties. Utterance don't have spatiotemporal and physical properties. Utterance only have physical properties. Option A is correct. Utterance will have spatiotemporal and physical properties. Sentences are dash linguistically structured. Abstract, complex, simple. Abstract. Option A is correct. ये भी most important और most repeated question है. Dash is concerned with the way in which ideas relate to each other. Language, logic, semantics. Option B is correct, logic. The basic unit of traditional logic is proposition, linguistics, semantics. Option A is correct, proposition. Propositions are the meaning that are expressed by dash sentences. Declarative, imperative questions. Option A is correct, declarative. अच्छा, एक और बात आपने माइंड में रखनी है, ये जो MCQs का करेक्ट आंसर है आपने अपना फोकस उस पर रखना है, क्योंकि जो बाकी अल्टरनेटिव इसके ऑप्शंस हैं वो मैंने अपने पास से क्रिएट किए हैं और वो जो एग्जामिनर है वो इसमें कुछ और भी ऑप्शंस डाल सकता है. द लॉजिकल मीनिंग ऑफ सिंपल प्रोपोजिशन इज डिटर्मिन्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है ये, क्विज 1 में भी बार बार रिपीट हो रहा था, कंपोजिशनैलिटी, डिसप्रोपोर्शनैलिटी, asymmetry. Option A is correct, compositionality. The meaning of proposition is composed to the meaning of subject plus. ये वाला आप छोड़ दें क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर है वो मिस्टेकनली सिलेक्टेड नहीं है, इसको आप छोड़ दें. Implicit meaning conveys a lot more than what is literally expressed. Option A is correct, literally expressed. आगे हमारे पास चैप्टर 2 है. Semantic is dash term to refer meaning, social, psychological, technical. Option C is correct, technical. Linguistic description is term used to show speaker knowledge, language, competence. Knowledge. Option A is correct. Semantic has also association with other fields such as philosophy, psychology, both. तो इन दोनों फील्ड्स के साथ semantic का रिलेशन है. ऑप्शन सी करेक्ट होगा, both. Chomsky has particularly commented on sentence formation, word formation, phrase formation. Option A is correct, sentence formation. The rules for the sentence formation must be recursive, comprehensive, short. Recursive.
अराइव ओरिजिनेट्स फ्रॉम डैश लैंग्वेज। अराइव जो वर्ड है ये बेसिकली किस लैंग्वेज का है, किस फील्ड से आया है, किस लैंग्वेज से आया है? लैटिन, फ्रेंच, रोमन। ऑप्शन ए इज करेक्ट, लैटिन। मनी इज रिलेटेड टू लैटिन मोनियो मीन्स। अब मनी जो वर्ड है ये लैटिन से आया है और लैटिन में इसका जो ओरिजिनल वर्ड है वो मोनियो है। तो मोनियो का क्या मतलब है? अमाउंट, एक्सपेंसेस, वर्न। ऑप्शन सी इज करेक्ट, वर्न। कार वाज ऑब्सलीट वर्ड फॉर। कार जो है ये ऑब्सलीट वर्ड है बाइक का, साइकिल का, चैरियट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, चैरियट। वन पावरफुल सोर्स फॉर मीनिंग चेंज इज लिंग्विस्टिक शिफ्ट, कोड स्विचिंग, टैबो। ऑप्शन सी इज करेक्ट, टैबो। द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड। किसी वर्ड के ओरिजिन को स्टडी करने को कहते हैं एटमोलॉजी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, एटमोलॉजी। साइक्रोनिक स्टडी मस्ट प्रोसीड द स्टडी ऑफ। साइक्रोनिक स्टडी प्रोसीड करती है डायक्रोनिक स्टडी को। ऑप्शन ए इज करेक्ट, डायक्रोनिक स्टडी। Some philosophers have suggested that many philosophical problems may be solved by the study of English language, new language, ordinary language. Option C is correct, ordinary language. The relationship between language and psychology given rise to। अब लैंग्वेज और साइकोलॉजी का जो रिलेशन है इसको हम स्टडी करते हैं साइकोलिंग्विस्टिक्स के अंदर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चार्ल्स मॉरिस पब्लिश हिज बुक इन 1946। ये वाली जो डेट्स हैं ये आपने मस्ट याद रखनी है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते होते हैं पेपर में। चार्ल्स मॉरिस पब्लिश हिज बुक। अब चार्ल्स मॉरिस की जो बुक थी 1946 में जो पब्लिश हुई इसका नेम क्या था? साइन लैंग्वेज एंड बिहेवियर। लिंग्विस्टिक इज अ पार्ट ऑफ जनरल स्टडी ऑफ यूज साइन सिस्टम इज कॉल्ड। अब लैंग्वेज के अंदर जो मीनिंग की स्टडी है जिस तरह उसको हम सिमेंटिक कहते हैं, इस तरह जो साइन की स्टडी है, सिंबल्स की स्टडी है, उनको हम कहते हैं सिमियोटिक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फेशियल एक्सप्रेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ सिग्निफाइड, सिग्निफाइड साइन। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सिग्निफायर। और ये वाले जो टॉपिक्स हैं लेसन 2 के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड जो शॉर्ट लेक्चर्स हैं वो मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, उनके इंशाल्लाह मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके वो लेक्चर्स वॉच करें ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इज साइन, सिग्निफाइड, सिग्निफायर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, साइन। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ साइंस, 4। आगे जो हमारे पास चैप्टर 3 है। अकॉर्डिंग टू सईद, रेफरेंस इज रिलेशनशिप बाय विच लैंग्वेज लुक्स एट ऑन द कल्चर वर्ल्ड मीनिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट, वर्ल्ड। एलन डिस्क्राइब दैट डैश इज decontextualized meaning, sense। Sense exists in the sentence, word, phrase, word most important एक्सक्यूज है, सेंस एग्जिस्ट करती है वर्ड के अंदर। अकॉर्डिंग टू हांग, डैश इज डिक्लरेटिव सेंटेंस, प्रोपोजिशन। द वर्ड प्रोपोजिशन हैज कम फ्रॉम फिलोसफी। अब प्रोपोजिशन का जो वर्ड है उसका ओरिजिन क्या है? तो वो ये वर्ड जो है कि फिलोसफी से आया है। प्रोपोजिशन इज द डैश लेवल ऑफ लैंग्वेज, लोएस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और हाईएस्ट लेवल सेंटेंस है। A sentence is a group of abstract grammatical elements obtained from utterance. Option C is correct, utterance. A well-formed dash of words put together by the grammatical rules of language, strings. Sentence is sub dash level of language, higher. Sentence is a complete expression while proposition is partial. According to Leach, dash is a natural unit of speech bounded in articulation. आर्टिकुलेशन, प्रोनाउंसिएशन की बात हो रही है, तो अटरेंस। ऑप्शन ए इज करेक्ट, अटरेंस। अटरेंस इज ऑलवेज रिटन इन इन्वर्टेड कॉमास। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई एम रीडिंग अ नॉवल इज एग्जाम्पल ऑफ। अब देखें ये एक सेंटेंस भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इन्वर्टेड कॉमास दिए हुए हैं एज अ हिंट, तो हमने इन्वर्टेड कॉमास को देखते हुए इसको गैस करना है, तो ये होगी अटरेंस। नो सिंपल रिलेशन ऑफ करेस्पॉन्डेंस बिटवीन अटरेंस एंड सेंटेंस, वर्ड एंड फ्रेज, words and sentence. Option A is correct, utterance and sentence. Literal meanings are dictionary meanings, invisible meaning, contextual meanings. Option A is correct, dictionary meanings. नॉन लिटरल मीनिंग्स आर, जो नॉन लिटरल मीनिंग होते हैं यानी कि जो लफ्सी मतलब नहीं होता किसी वर्ड का, वो डिक्शनरी मीनिंग्स उनको कहते हैं, इनविजिबल मीनिंग कहते हैं या कॉन्सेप्चुअल। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कॉन्सेप्चुअल। आई कोड ईट अ हॉर्स इज एग्जाम्पल ऑफ, तो ये नॉन लिटरल मीनिंग्स की एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Non literal meanings are also called figurative meaning, यानी जो मुहावरे या इडियम्स के ज़रिए कुछ बात कही जा रही होती है। देयर आर डैश स्कूल ऑफ थॉट अबाउट सिमेंटिक एंड प्रैग्मेटिक्स। सिमेंटिक एंड प्रैग्मेटिक्स के बारे में कितने स्कूल्स ऑफ थॉट हैं? 3। Semantic is only study of conceptual meaning and real conversation takes place in the pragmatic. This school of thought is called pragmatisms.
यहाँ पे प्रैग्मेटिक्स को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, तो ये प्रैग्मेटिज्म है, और जिसमें सिमेंटिक को ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है वो सिमेंटिकिज्म होगा। और थर्ड जो स्कूल ऑफ थॉट है उसमें दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। वन ग्रुप ऑफ लिंग्विस्ट सेज दैट ओनली 3 फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स आर प्योर लिंग्विस्टिक्स। अब एक जो लिंग्विस्ट्स का ग्रुप है वो ये कहता है कि लिंग्विस्टिक्स के अंदर जो प्योर फील्ड्स हैं वो सिर्फ हैं ही 3। तो वो कौन कौन सी हैं? सेमेंटिक, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, सोशियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सेमेंटिक। तो वो जो 3 मेन जिनको प्योर लिंग्विस्टिक्स माना जाता है वो हैं सेमेंटिक, मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स, ऑप्शन बी। आगे हमारे पास चैप्टर 4 है सेमेंटिक, डील्स विद द स्टडी ऑफ मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट, स्ट्रक्चर। Meaning is concerned to language via lexicon, grammar and lexicon. Option C is correct, lexicon and grammar. Holistic theory tends to be functional, theoretic, declarative. Functional, option A is correct. If you call something tall, you should be willing to call it. It's too much tall, it's not short, it's too long. It's not short. The critics of holistic theory is also argues that way language express thought is not situational, arbitrary, contextual. Option B is correct, arbitrary. How language express meanings in terms of nature of concepts. This theory is called theory of meaning. Theory of meaning. According to Dash, concepts are formed by experience of people. कॉन्सेप्ट्स जो हैं लोगों के एक्सपीरियंस से जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, और इस तरह जो एक्सपीरियंस होते हैं वो वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। इसी वजह से ये थ्योरी इस पर क्रिटिसिज्म हुआ था। तो ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू था कि एक्सपीरियंस से कॉन्सेप्ट्स जनरेट होते हैं, क्रिएट होते हैं? पार्टनर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, पार्टनर। मीनिंग्स आर आउट इन द वर्ल्ड, थ्योरी इज फेल टू इन्फ्लुएंस। प्रैग्मेटिक्स, सेमेंटिक्स, बोथ। सेमेंटिक्स। प्रॉपर नाउन डिनोट इंडिविजुअल, common noun denotes set of individuals. The notion of possible world doesn't mean something imaginary and disconnected from the reality. अब जो possible world का concept दिया गया था उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं था कि कुछ imaginary या कुछ बिल्कुल reality से disconnected world की बात हो रही है। Truth condition helps to explain logical word, option B. The meaning of imperative is seen as satisfactory, unsatisfactory, true, false, both. तो जो इम्पेरेटिव सीन की सेंस की यानी कि उसको देखा जाता है वो है सेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री। अ लैंग्वेज इज इन्फिनिट कलेक्शन ऑफ फ्रेजेस, सेंटेंसेस एंड डिस्कोर्स, तीनों इसमें आएंगे। टू सीक इन्फिनिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशनैलिटी। टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस वी नीड टू अंडरस्टैंड इट्स कंपोनेंट्स, यानी हमें देखना पड़ेगा कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझने के लिए उसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से, नाउन फ्रेज है, वर्ब इसमें कौन सा है, नाउन कौन सा है, इस तरह से आर्टिकल्स क्या है, उसमें हमें सेंटेंस का कंप्लीट कंपोनेंट्स के बारे में जानना होगा। लिंग्विस्टिक मीनिंग इज कॉल्ड, ये हमारे पास अब है लेसन 5। लिंग्विस्टिक मीनिंग इज आल्सो कॉल्ड, उनको डिनोटेटिव मीनिंग भी कहते हैं, लॉजिकल भी कहते हैं, कोग्निटिव भी कहते हैं। तो ऑल ऑफ देम इज अ करेक्ट आंसर। Any piece of language is structured simultaneously on more than dash level, one level. At least dash level are necessary for linguistic competence 3. Meaning is an inextricable part of word language is conceptual. Connotative meaning include not only physical characteristic but also include physical, psychological properties, social properties, both. Option C is correct, both. Connotative meaning are concerned with. कोनोटेटिव जो मीनिंग होते हैं वो कंसर्न होते हैं इमेजिनरी वर्ल्ड से, पॉसिबल वर्ल्ड से या रियल वर्ल्ड से। ऑप्शन बी इज करेक्ट, रियल वर्ल्ड। कोनोटेटिव मीनिंग कंपेयर्ड विद कॉन्सेप्चुअल मीनिंग्स आर इंटरमीडिएट एंड ओपन एंडेड। सोशल मीनिंग्स टेल्स अस अबाउट जियोग्राफिकल एंड सोशल बैकग्राउंड। अ सेंटेंस में डिफर फ्रॉम इट्स कॉन्सेप्चुअल मीनिंग ड्यू टू सम सोशल फोर्स। इफेक्टिव मीनिंग रिफ्लेक्ट्स फीलिंग ऑफ द स्पीकर पर्सनल। इफेक्टिव मीनिंग किसी स्पीकर की पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, लाइक एंगर और हैप्पीनेस, सैडनेस, इस तरह से। सोशल नॉर्म ऑफ पोलाइटनेस में वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इफेक्टिव मीनिंग्स आर लार्जली डैश कैटेगरी पैरास्टिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज है ये वाला, रिपीटेड है। द मीनिंग इन विच वी एसोसिएट वन सेंस ऑफ एक्सप्रेशन विद अदर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव मीनिंग। Pretty and handsome share similar meaning of good looking, beautiful, smart, good looking.
thematic meaning of focus on, stress and intonation. चैप्टर 6 है हमारे पास सेंस प्ले न्यू लेवल बिटवीन वर्ड्स एंड वर्ल्ड, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, वर्ड्स एंड मीनिंग्स, वर्ड्स एंड वर्ल्ड. Necessary and sufficient conditions are one traditional approach to describe concepts को डिस्क्राइब करने के लिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये यूज़ किया गया है, ये वाली जो यानी टर्म है ना ये यूज़ की गया है. Necessary and sufficient condition. Prototype theory involve dash notion. Psycholinguistics. Prototypes may help children learn the meaning of new words. Culturally and socially dependent prototypes vary across population. Many words have no clear mental image such as forget things, concept, without. तो ये सारे इसमें आ जाते हैं. इसमें all of the given option या both select हम करेंगे. The notion of linguistic relatively associated with relativity. तो ये वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एडवर्ड सैपर, बेंजामिन लीज या बोथ? तो इसमें दोनों ने दिया था ये कॉन्सेप्ट. बेंजामिन ली जो थे वो सैपर के टीचर थे. तो ये वाला बोथ हम इसका सिलेक्ट करेंगे. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. द फैक्ट दैट लैंग्वेज मिरर कल्चरल डिफरेंसेस फॉलोड बाय द वर्क ऑफ फ्रांस बस. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. Dash rejected the idea of linguistic relativity. Cognitive science. Option B is correct. Cognitive science. When we want to speak, we translate from mentalies to spoken language. Mentalies वो concepts होते हैं जो हमारे माइंड में बने होते हैं कुछ बोलने से पहले, कुछ राइट करने से पहले. आगे हमारे पास लेसन 7 है. The branch of linguistics that deals with the meaning is called lexical semantics. The lexical relation is used to indicate dash relation among words. Paradigmatic. Words can be identified at the level of writing. In dash there are strings of sounds which may show internal structuring. Phonology. Dash is the smallest unit of speech. Word. The tendency for words to occur together repeatedly called collocation. The contextual effect can pull words meaning to words, creativity and semantic shift. Homonyms are the unrelated senses of the same phonological words. Different types of homonyms can be distinguished by their syntactic behavior and spelling. Dash identified using the criteria of relatedness, polysemy. Synonyms is the notion of meaning sameness. काउच, सोफा, बॉय, लैड आर एग्जाम्पल ऑफ सिनोनिम्स. यहाँ पे कुछ और भी वर्ड्स दे सकते हैं जिनके सेम मीनिंग्स हों. डैश आर नेवर ट्रूली सब्स्टिट्यूटेबल सिनोनिम. एंटोनिम्स आर वर्ड्स विच आर डैश इन मीनिंग ऑपोजिट. द नेगेटिव ऑफ वन इम्प्लाइज द पॉजिटिव ऑफ द अदर. तो ये एंटोनिम्स की कौन सी टाइप होती है? सिंपल एंटोनिम्स. डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन टू एंटिटीज फ्रॉम अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स इज कॉल्ड कन्वर्सेस. यानी एक ही चीज़ को दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट से, दो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, दो डिफरेंट नज़रियात से देखना, उसके मतलब दो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स रखना, तो ये होती है कन्वर्सेस. ऑन, बिलोंग, अबव, बिलो आर एग्जांपल्स ऑफ कन्वर्सेस. द टर्म डिस्क्राइबिंग मूवमेंट इज कॉल्ड रिवर्सेस. डैश इज रिलेशनशिप ऑफ इंक्लूशन, हाइपोनिमी. डॉग एंड कैट आर हाइपोनिम ऑफ एनिमल्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज है. सिस्टर एंड मदर आर हाइपोनिम ऑफ women. When the meaning of one form is included, the meaning of the other form, this relation is called hyponym. The term is to describe part-whole relationship. तो part-whole relationship को जो term describe कर रही होती है उसको हम कहते हैं meronym. Meronymy differs from hyponym in transitivity. Dash is always transitive. Hyponym. The verb describes range of state is known as causative verb. Skier, walker, dictator are example of agentive noun. Option A is correct. Investigated languages vary in the number and range of their color terms. तो ये किसने ये इन्वेस्टिगेट किया था? बर्लिन एंड के.
English language has dash color terms 11. The core vocabulary could be used to trace lexical links between language. Swedish originally proposed dash word list 200 वर्ड्स की उन्होंने एक वर्ड लिस्ट जो थी वो पेश की थी, बाद में उसमें मॉडिफिकेशंस भी हुई हैं और अब वो 100 की वर्ड लिस्ट है. यूनिवर्सल लेक्सीम्स वर इन्वेस्टिगेटेड बाय एना व्रेस्बिका. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. आगे हमारे पास लेसन 9 है जी. मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स हैव देयर एसोसिएशन विद अदर वर्ड्स विच कैन इन्फॉर्म ऑफ पैराडिग्मेटिक सिंटैग्मेटिक रिलेशंस. In a red door and green door, dash are relation to each other, paradigmatic. ये वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है. Linguistic often refer to the paradigmatic dimension of language. Vertical axis selection. Combination based on sequential relation are called syntagm. In a red car and a green car, red and green are dash relation with car, syntagmatic. Syntagm is a term. Linguistic, psychological, social, linguistic. ये वाला भी important MCQs है. The words in semantic field share dash semantic properties. Common, different, abstract. Common. According to dash, the words in semantic fields are incompatible. Palmer. तो ये Palmer की statement थी. The words in semantic fields are incompatible. Anger, happiness, sadness are not synonymous, but they are part of semantic field called emotional state. तो ये सारी हमारी emotional states होती हैं. आगे जी हमारे पास dash is a familiar grouping of words. Collocations. Collocations में familiar words की grouping होती है basically. Dash are expression whose meanings cannot be inferred from the meaning of its part. Idioms. यानी idioms को हम देख के डायरेक्टली उसके जो उसमें जो वर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं उनसे डायरेक्टली हम कोई मीनिंग नहीं समझ सकते जब तक कि हमें कुछ कल्चरल नॉर्म्स का ना पता हो उस लैंग्वेज में, जब तक हम कॉम्पिटेंस ना हो. मेजॉरिटी ऑफ इडियम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? होमोनिमी, होमोफोनस, मेरोनिम, होमोफोनस. Dash are grammatically well formed and semantically transparent expressions. Idiom. Dash has hypothesized that the tool of logic can help us to represent sentence meaning. Montag. The study of logic comes from the classical dash word, Greek word. The term propositional logic is also known as propositional, sensational, both भी इसका ऑप्शन था. हाँ, propositional and sensational calculus. तो इसका ये करेक्ट होगा. Semantic calls a sentence being true or false based on its truth value. John Love Mary be symbolized as L. A B stand for. तो यहाँ पे L stand for यानी L किस चीज़ को प्रिडिकेट कर रहा है? लव को. और A B जॉन एंड मैरी को. Entailment defined by truth, logic, proposition, truth. The anarchist assassinated the emperor. Here entailment is. यानी एक अनार्किस्ट ने एम्परर को कत्ल कर दिया. तो इससे हम क्या इंटेलमेंट बनाएंगे कि एम्परर जो था उसने वो फाउट किया, एम्परर डिफीटेड या उस मतलब को उसको शिकस्त हुई, या द एम्परर डाइड या एम्परर जो है वो मर चुका है. तो द एम्परर डाइड क्योंकि उसको कत्ल कर दिया गया. जुमले से ही इंटेलमेंट हम समझ में आ रही है. तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, द एम्परर डाइड. और इसकी जगह पे वे कुछ और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं. स्नो इज़ वाइट इफ़ एंड ओनली स्नो इज़ वाइट. ये किसकी एग्जाम्पल है? ट्रूथ कंडीशनल सेमेंटिक की. आगे हमारे पास चैप्टर 11 है. स्पीकर्स अज्यूम सर्टन इन्फॉर्मेशन विच इज़ ऑलरेडी नोन बाय देयर लिसनर एंड दैट इन्फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड प्रीसपोजिशन. जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे अली की कार का हादसा हो गया, तो इससे हमें ये प्रीसपोजिशन हम बनाते हैं कि अली के पास कार थी. तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन होगी इसको कहेंगे प्रीसपोजिशन, जो हम अपने पास से सपोज कर रहे हैं. Sentences are viewed as external object in dash approach semantic. Sentences are viewed as utterance of individual engaged in communication act pragmatic. Ronald is vegetarian. Presupposes. इससे हम क्या प्रीसपोज करेंगे? रोनाल्ड जो है वो रोनाल्ड खाता है, रोनाल्ड ह्यूमन है या रोनाल्ड एग्जिस्ट करता है. तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है ना कि रोनाल्ड इज़ वेजिटेरियन. सबसे पहले हम ये माइंड में प्रीसपोजिशन बनाएंगे कि अच्छा रोनाल्ड कोई बंदा है और वो एग्जिस्ट करता है.
द प्रॉब्लम फॉर ट्रुथ बेस्ड थ्योरीज इज नोन एज ट्रुथ वैल्यू गैप। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। लेक्सिकल ट्रिगर्स आर मोस्टली वर्ब, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। रेग्रेट एंड रियलाइज आर कॉल्ड, तो इन वर्ड्स को क्या कहते हैं? फैक्टिव वर्ड्स, क्योंकि इनमें फैक्ट्स की बात हो रही है, और कुछ रेग्रेट एंड रियलाइज कुछ यानी फील करने की बात हो रही है ना। कैंसलिंग ऑफ प्रीपोजिशन वेयर प्रीपोजिशन बिहेवियर इज रिलेटेड टू कॉन्टेक्स्ट इज नोन एज डिफिजिबिलिटी। डिफिजिबिलिटी की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे जैसे ना कुछ जनरल नॉलेज की बातें होती हैं, और अगर जो हम कुछ प्रीसपोज कर रहे होते हैं वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट जा रहा होता है, वो उसको जनरल नॉलेज के मुताबिक देखा जाए तो वो बात कम्प्लीटली इम्पॉसिबल होती है। तो इसको कहते हैं डिफिजिबिलिटी, यानी जनरल नॉलेज की वजह से कुछ प्रीसपोजिशन कैंसल हो रही हो। जैसे वो मरने के बाद अपना काम मुकम्मल कर लेगी, या इस तरह से कुछ। तो अब हम लोग जानते हैं कि मरने के बाद कुछ भी नहीं किया जा सकता, तो इस तरह से मैंने आपको जनरल एग्जांपल दिया, इसके और भी एग्जांपल्स हो सकती है, मतलब कि जिसमें जो प्रीसपोजिशन हो ना वो इम्पॉसिबल हो। तो इसमें प्रीसपोजिशन की जो कैंसलिंग होती है इसको कहते हैं डिफिजिबिलिटी। अब लेसन नंबर 11 तक हो गए हैं ये एमसीक्यूज। लेसन 12 से 17 तक तो जो थे वो क्विज 2 में इंक्लूड थे। तो उसमें जो एमसीक्यूज आएंगे पेपर में, जो उन चैप्टर से एमसीक्यूज आएंगे वो उसकी प्रिपरेशन हम क्विज फाइल से भी कर सकते थे। तो इस वजह से वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही थी। तो लेसन 18 जो कि मिड टर्म सिलेबस का लास्ट लेसन है, उसके कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। Pragmatic is relatively branch of linguistics, new, famous, old. Option A is correct, new. Pragmatic in Latin and pragmatic in Greek, both meaning of being practical. Modern use and practice of pragmatic is credited to American philosophical doctrine of pragmatism. Most important MCQs है. The pragmatic interpretation of semiotic and verbal communication studies in foundation theory of Charles Morris. सिमियोटिक स्टडी ऑफ साइन, तो ये चार्ल्स मॉरिस ने बुक भी इसमें पब्लिश की थी 1946 में, और यहाँ पे उसके काम के बारे में पूछा जा रहा है। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल डिस्कवर बाय, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल किसने डिस्कवर किया था? ग्राइस। वेल लीज डिस्कवर पोलाइटनेस प्रिंसिपल, अब लीज ने पोलाइटनेस प्रिंसिपल कब डिस्कवर किया? 1983 में। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पोलाइटनेस प्रिंसिपल किसने डिस्कवर किया? तो लीच ने डिस्कवर किया। Austin organized a group of philosophers whose work is known as ordinary language philosophy. आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ordinary language philosophy का जो वर्क था उसके लिए फिलोसफर को किसने ऑर्गेनाइज किया था? ऑस्टन ने। The post-war Oxford philosopher did not generally use the term pragmatic. यानी कि जो पोस्ट वार एक्सपर्ट फिलोसफर्स थे वो हिडन मीनिंग और इनविजिबल मीनिंग के बारे में बात करते थे, उसके बारे में लिखते थे, लेकिन वो प्रैग्मेटिक का वर्ड उन्होंने यूज़ नहीं किया। The use of the word dash to describe separate field of study. Most important MCQs pragmatic. Dash has traced some of the central concern of modern pragmatics back to the work of earlier writer Larry Horn. The current state and recent history of pragmatics are dash to describe briefly, diverse and complex. आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।